all of you. Last lecture we will sing the vector topic. We know that what is meant by vector, what is meant by scalars, and some important terms, types of vectors, important terms of the vectors. Collinear, what is meant by collinear, what is meant by coplanar, what is the scalar multiplications. One of the vector is a scalar multiple of other is called as the collinears. And what is the coplanar? What is this coplanar? Today's we see the theorems. It's coplanarity theorems and collinearity theorems. Two theorems we will be seeing that. Here first one is the theorem is the, again here write theorem number 1, let vector A and vector B be non-collinear vectors. है ना? Vector A and vector B is non-collinear vectors. A vector R is coplanar. One of the vector is the coplanar vectors, and these two vector is the non-collinear vectors. With A and B, if and only if means reversible. Is we show that is if part and only if part. There exist unit scalar T1 and T2. There are two scalar to take care, the T1 and T2, such that vector R is equals to T1 A bar plus T2 B bar. Vector R here R bar or A bar, B bar, or vector R, vector A, vector B, etc. Okay, means here we want to show that theorem is the first concept is the, we know that the collinear, one of the vector is a scalar multiple of other is called as the collinear vectors. Parallel vectors is a collinear vectors. Definitions of the collinear last period we will discuss. Then here coplanar, new part is the coplanar. Also I can understanding the concept of the coplanar. What is meant by coplanar? Is two vectors or more than two vectors in a same plane. Parallel plane is called as the coplanar vectors. Okay, this concept by using the parallelogram law, triangle law is converted to the parallelograms. Then again it is the coplanar vectors. Here two vectors are parallel, that vector is the coplanar vectors. This concept in a plane, in a plane, same plane, parallel plane. कुठलेही दोन वेक्टर, कौन से भी दो वेक्टर्स रहे जो दो प्लेन में, एक प्लेन में पैरेलल रहे या दो प्लेन पैरेलल रहे कि एक ही प्लेन में पैरेलल रहे, डायरेक्शंस कौन सी भी रहे, उसको हम कोप्लानर वेक्टर्स बोलते हैं. ओके, देन theorem is the AB non-collinear vectors and coplanar vectors with AB if and only if आपको शो करना है. if पार्ट भी पहला वाला if पार्ट है और ओनली if वाला सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट आपको यहाँ पर शो करना है. उसके बाद में इसको आपको ये भी शो करना है if and only इसका यूनिकनेस, अनदर वेक्टर नहीं होगा उसकी जगह पर, वो एक ही वेक्टर होगा, ये भी आपको शो करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले जैसे यहाँ पर दो पार्ट मैंने कहा और तीसरा पार्ट यूनिक पार्ट बोला मैंने. यहाँ पर if and only if, तो एक पार्ट है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ओनली if पार्ट स्टार्ट करते हैं. अभी ओनली if पार्ट क्या है, देखो मैंने लिया प्रूफ पर यहाँ पर ओनली if पार्ट. अभी if पार्ट में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द if पार्ट ऑफ दिस थ्योरम. दिस थ्योरम सपोज वेक्टर R है ना, सपोज वेक्टर R bar है ना, R bar is a coplanar, ये given that R bar is the coplanar with vector A and B to show that there exists a unique scalar, एकमेव क्या बोलते हैं ना, यूनिक स्केलर्स T1 and T2 such that vector R is equals to means R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar. क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया. थ्योरम के स्टेटमेंट में से मैंने एक पार्ट गिवन बोला और दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए बोला. अभी जो दूसरा पार्ट रहेगा इसका ओनली इफ पार्ट बोलेगा, ये ओनली इफ पार्ट हो गया. इफ पार्ट जो पहले वाला रहेगा उसमें इसका उल्टा करेंगे, उल्टा है ना, कॉन्वर्स करेंगे. क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैंने ऊपर का जो है गिवन लिया, आपको ये शो करना है. क्या शो करना है,
आर बार इज इक्वल्स टू T1 A बार प्लस T2 B बार। आया समझ में? अभी देखो थ्योरम ओनली इफ पार्ट मैंने ये आपको बता दिया कि क्या लिखा हुआ है, ये याद करने की जरूरत नहीं, हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि ये ओनली इफ पार्ट आपको शो करना है, यानी ओनली इफ के बाद का जो भी है वो आपको शो करना है, और जो पहले दिया हुआ है वो गिवन है। आया समझ में? ये कोप्लानर वेला मैंने शो दैट आपको करना है, दो वेक्टर्स लिए ये हो गया ना, सिंपल थ्योरम है, याद ऐसे रखो, एक बार पढ़े तो आपको बार बार याद करने की जरूरत है, याद हो जाएगा ये कि इसमें। चलो ठीक है, अभी जो है मैंने यहाँ पर ले लिया, आपको शो करना है, इतना ध्यान में रखो, पहले ये शो करना है उसके बाद में ये शो करेंगे, उल्टा शो करेंगे। अभी इसमें है लेट ए बार है ना, अभी यहाँ पर A, B and R bar three vectors here given that, आणि R bar coplanar है with AB, A bar and B bar. Let A bar be along to OA. देखो मैं यहाँ पर एक O is the initial point, वो starting का point, O is initial point है, OA इस डायरेक्शन से, OB इस डायरेक्शन से, OA और OB ऐसे दो वेक्टर निकाले, वैसे ही जैसे वेक्टर ए बी द अलोंग ओ ए, जो ए वेक्टर से इसके अलोंग है, ए जो है वेक्टर से ए बार है, ऐसा बोलते हैं, ओ ए वेक्टर इज ए बार, बी बार बी अलोंग ओ बी, ये जो वेक्टर्स है ये बी बार है। लेट मैंने एक दोनों से मिडल भी ले सकते, कोई भी एक रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं उसको, ओ से एक वेक्टर निकाला, तो जैसे ओपी वेक्टर निकाला, ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर बार, ऐसे कंसीडर किया। क्या है समझ में आया? एक ओ ए लाइन निकाली, ओ ए रे यानी आप ओ ए वेक्टर बोलते हैं, वो ए बार हो गया, ओ बी निकाला, ओ बी बार हो गया, ओ पी निकाला, ऐसे सेंटर में से लेना, ऐसा कुछ ये नहीं है। ओके, आर बार ओ पी इज इक्वल टू आर बार है, ये तीनों वेक्टर मैंने ले लिए एक डायग्राम में। अभी क्या किया मैंने कि जो पी पॉइंट यहाँ पर दिया, इससे मैं पैरेललोग्राम ड्रा करता हूँ। कैसे ड्रा करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर एक ये जो ओबी लाइन है, ओबी वेक्टर है आपका, ओबी वेक्टर को एक पैरेलल वेक्टर निकाल लिया यहाँ पर, जैसे यहाँ से पीएम है ना, पीएम ओबी को पैरेलल निकाला, यहाँ पर लिख दिया ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू ओबी, ओबी को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया मैंने, मीट ओए इन एम है ना, ओए को एम पॉइंट में मिलती है वो लाइन है ना, एम में। उसी प्रकार से सेम थिंग इज द हियर, Pn, Pn is perpendicular नहीं, लेकिन Pn is a parallel to OA, and parallel to OA is this is meet OB on point N है ना, ये देखो यहाँ पर दिया, and parallel to OA meet OB in N है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या क्या किया आपने? थ्योरम में क्या है? बहुत सिंपल थ्योरम है, ऐसा लगता है हर एक बच्चे को कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ भी नहीं है। दो पार्ट है इसमें, पहला पार्ट आपने लिया ओनली इफ पार्ट, उसको आपने लिख दिया कि ये जो है ये ऊपर का जो हो गिवन है, नीचे का जो है शो करना है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर आर क्या है, वो लिख दिया। फिर पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए, जैसे एम पॉइंट इसको मिलता है, एन पॉइंट इसको मिलता है, तो उसको भी मैंने ऐसे लिख कर दे दिया आपको, ये होगा क्लियर। उसके बाद में जैसे ओ एन, अभी देखो ये ओ एन मैंने, ये जो ओ बी वेक्टर है अलॉन्ग बी है ना, ओ बी, तो ये बी वेक्टर हो गया। तो ये क्या है, आप स्केलर मल्टीपल बोल सकते हैं इसको है ना, कोलिनियर वेक्टर्स है, एक ही लाइन पे वेक्टर्स है, यानी ये जो है स्केलर मल्टीपल ऑफ द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर है ना। ये बी वेक्टर आपको पता है, तो ये ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, T2B हो जाएगा। उसी प्रकार सिमिलरली ये ओ एम वेक्टर क्या हो जाएगा, इज द कोलिनियर वेक्टर्स, इज वन कोलिनियर वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। सो हियर ओ एम है ना, ओ एम क्या हो जाएगा, T1A बार है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया ओ एन इज इक्वल्स टू T1B बार एंड ओ एम इज इक्वल्स टू T1A बार, और सम T1 and T2 belongs to the real number because of this is the scalar T1 and T2। ओके, उसके बाद में
जैसे ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम से 11th क्लास में आपने पढ़े हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अगर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम वी हैव क्या करेंगे वैसे ट्रायंगल लॉ करेंगे यूज तो ये हो गया है ना ये और दोनों को मिला के है ना ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम वेक्टर r इज इक्वल्स टू जैसे ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी इसको यानी ये और ये T2b ये हो गया T1a ये होगा T2b तो वेक्टर r ऐसे भी आप लिखते हैं ऊपर का ट्रायंगल लिया तो ये जो है ये पैरेलल इसको पैरेलल है ये जो है उसकी मैग्नीट्यूड ये पैरेलल है इसलिए T1a बार ये भी T1a बार हो जाएगा यानी T1a बार प्लस T2a बार इज इक्वल टू r बार ऐसे लिखेंगे आप समझ में आ गया अभी उसी प्रकार से नहीं तो पैरेललोग्राम जैसे डायरेक्टली लिखते हैं अब ये जो लाइन है ये लाइन ये रिजल्टेंट लाइन बोलते हैं उसको पैरेललोग्राम की यानी T1a बार प्लस T2b बार that is equals to vector r means vector r is equals to T1a bar plus T2 bar T2 bar T2b bar ओके इस प्रकार से ये शो हो गया आपका ओनली if पार्ट है ना आपको शो करना था अभी इसका उल्टा क्या करना है इसका आपको ये if एंड ओनली if पार्ट आपने शो किया अभी if पार्ट आपको शो कर रहा है if पार्ट है if पार्ट मैंने एक से यहाँ पर लिख दिया क्या है अभी ये आपको गिवन है यानी लास्ट वाला गिवन रहेगा वेक्टर r इज इक्वल टू T1a बार मींस r बार इज इक्वल टू T1a बार प्लस T2b बार एंड वी हैव टू शो दैट ऊपर का आपको शो करना है वेक्टर r है ना वेक्टर r वेक्टर a वेक्टर b ये कोई नॉन कोलिनियर है लेकिन ये तीनों वेक्टर क्या है आपको शो करना है कोप्लानर है to show that r vector r means a bar b bar are coplanar आया समझ में ओके अभी इसको प्रूव करना है सिंपल प्रूफ है चलो ठीक है ये तो आपको पता है a और b क्या है r कोप्लानर a और b कोप्लानर है कैसे क्या a और b कोप्लानर है वो एक ही प्लेन में है एक ही लाइन डायरेक्शन में जाते हैं इसलिए ये दो वेक्टर्स का आपको कोप्लानर है r इज यानी जैसे ये कोप्लानर है देयरफॉर इसके अलोंग टू दिस वेक्टर्स OM एंड ON है ना ये और A एक ही प्लेन में है ना देखो ये प्लेन हो गया आपका जैसे आपने ड्रॉ किया तो ये पूरा एक प्लेन हो जाएगा ये प्लेन में A वेक्टर और A वेक्टर दोनों पैरेलल है यानी एक ही वेक्टर एक ही प्लेन में आएगा तो OA और OB पैरेलल हो जाएगा यानी कोप्लानर हो जाएगा मींस हियर वेक्टर A एंड वेक्टर B coplanar so T1a यानी we along this OA T1a T2b is also coplanar है ना so vector A vector B are coplanar T1a bar T2b bar are also coplanar बिकॉज ऑफ स्केलर मल्टीपल है उसके साथ में ही इसलिए वो भी कोप्लानर हो जाएंगे इसलिए आप क्या बोलेंगे सब हमने मैंने यहाँ पर दोनों के एडिशंस कर दिया दो कोप्लानर वेक्टर की सम करने के बाद तीसरा जो वेक्टर मिलेगा वो भी कोप्लानर रहेगा देयरफॉर T1a बार प्लस T2b बार इज आल्सो कोप्लानर A and B are coplanar so this vector coplanar this vector coplanar this vector and this is equals to r bar है ना यहाँ पर ऐसे r पहले लिख सकते हैं आप है ना यहाँ पर therefore वेक्टर r कॉमा वेक्टर a कॉमा वेक्टर b r कोप्लानर ये हो गया आपका if पार्ट आया समझ में क्या करना था आपको तो ये इस प्रकार से आप इसका प्रूफ लिख सकते हैं ये हो गया if and only if अभी यहाँ पर मैं एक सेंटेंस वैसे लिख दिया देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर इसका यूनिकनेस कभी कभी पूछते हैं तो यूनिकनेस क्या करेंगे अभी समझो यहाँ पर मैं अभी पूछ लेता हूँ चलो ठीक है यूनिकनेस
यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस क्या है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर r इज इक्वल टू t1 है, इसका यूनिक एकमेव पॉइंट है, ये जो है दोनों पॉइंट है वो एक ही है, ऐसे आपको कोलिनियर से आप शो कर सकते हैं। जैसे यूनिकनेस सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर, सपोज वेक्टर r बार इज इक्वल टू क्या है? t1 a बार प्लस t2 b बार, ये तो है अपने पास। सपोज वेक्टर r बार इज इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार। यूनिकनेस यानी ये जो पॉइंट है वही पॉइंट, दूसरा वेक्टर लेता हूँ, कंसीडर द अनदर वेक्टर्स है ना, कैन आल्सो वेक्टर r बार इज इक्वल टू, ये t1 और t2 जो है स्केलर से, उसके जवाब में दूसरे लेता हूँ। यहाँ पर समझो मैंने s1 a बार प्लस s2 b बार है ना, ये और ये पॉइंट अलग नहीं है, आपको यूनिक पॉइंट है, t1 एंड t2 आर द स्केलर, दिस इज द यूनिक पॉइंट आपको शो करना है। r बार इज इक्वल टू दिस, आई कैन हियर इक्वेशन नंबर 1 राइट एज द, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? r बार माइनस r बार दैट इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, r बार माइनस r बार इक्वल्स टू 0 वेक्टर्स। a बार इज द कॉमन हियर, t1 माइनस s1 into a बार प्लस t2 माइनस s2 into b बार। कंपेयर दिस, कंपेयर जीरो वेक्टर आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे जीरो वेक्टर है 0 a बार प्लस 0 b बार, ऐसा लिख सकते हैं आप जीरो वेक्टर को। एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हियर जीरो वेक्टर इज राइट एज द, सो हियर 0 a बार 0 b बार, सो इक्वाइटिंग 0 a बार 0 b बार write as the, means this is the a bar, that is this 0 is equals to this, therefore by corollary of the collinear theorems, corollary of the non-collinear vectors, collinearity theorems, non-collinear vectors is the t1 minus s1 is equals to 0 and t2 minus s2 is equals to 0. So t1 minus s1 is equals to 0, therefore t1 is equals to s1 and t2 is equals to s2। यानी इसका मतलब ये है, जैसे वेक्टर r is equals to t1 a बार plus t2 b बार ऐसे लिखा आपने, और अनदर वेक्टर ले लिया कैन आल्सो, यू कैन कंसीडर द वेक्टर्स r बार इज इक्वल्स टू यूनिक पॉइंट शो करने के लिए। ये समझो t1 और t2 अलग है, s1 s2 लिया, लेकिन आपने जब इसको कंपेयर करके नॉन कोलिनियर वेक्टर से आपने शो करके देखा, पोलैरिटी कलोरी यूज करके t1 एंड s1 ये आ जाएगा, t1 s1 इज इक्वल्स टू 0 एंड t2 s2 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों 0 आ जाएगा एंड t1 s1 t2 s2 ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि therefore the uniqueness follows, therefore it is a uniqueness follows। ओके, ये होगा आपका यूनिक। इस प्रकार से थ्योरम में, ये थ्योरम पूछे तो 4 मार्क के लिए पूछता है, जैसे 2-2 मार्क दिए इसके लिए, 1 मार्क यूनिकनेस के लिए, 2 मार्क इसके लिए, उसको 1.5 मार्क है, 1-1 मार्क ऐसे 4 मार्क के लिए पूछता है। चलो समझ में आ गया ये, और एक थ्योरम लेंगे और यहाँ पर समझ में आ गया होंगे आप, चलो लिख लो, और उसके बाद में मैं थ्योरम यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरा थ्योरम कौन सा है? कोलिनियर का थ्योरम से। थ्योरम नंबर 2, सीक्वेंस चेंज हुए होंगे, सेकंड थ्योरम मैंने पहले लिया, अभी फर्स्ट वाला थ्योरम सेकंड लेने वाला हूँ। चलो पहला यहाँ पर है 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर a बार एंड b बार आर कोलिनियर
collinear if and only if and only if there exist scalar m and n. There exist scalars m and n at least one of them is non-zero such that m a bar plus n b bar is equals to 0 वेक्टर। अभी देखो जो पहला थ्योरम देखा है वो कोप्लेनर पे डिपेंड था, नॉन कोलिनियर था, लेकिन ये जो थ्योरम है टू नॉन जीरो वेक्टर है ना, दोनों नॉन जीरो वेक्टर से ए एंड बी बार बी बार आर कोलिनियर, दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसका मतलब क्या है, वन ऑफ द वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, यानी दो वेक्टर वो पैरेलल होंगे, एक ही लाइन पे होंगे या पैरेलल पे होंगे, पहला वेक्टर दूसरे के 2 पट 4 पट ऐसा वेक्टर होने वाला है, वो उसको आप कोलिनियर बोलते हैं। और इसमें आपको शो करना है इफ एंड ओनली इफ, वैसे ही यहाँ पर पहले कौन सा पार्ट वन ओनली इफ वाला पार्ट शो करेंगे, उसके बाद में इफ पार्ट शो करेंगे और लिखेंगे। चलो ठीक है, पहले जो है प्रूफ में अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट, ओनली इफ पार्ट। अभी ओनली इफ पार्ट में क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है, देखो देयर एग्जिस्ट स्केलर m एंड n है ना, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या है, वो ऊपर का गिवन है, सपोज वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको शो क्या करना है, ये कोलिनियर वेक्टर से, तो आपको क्या करना है, देयर एग्जिस्ट a scalar, there exists a scalar m and n, at least one of them is non-zero such that ma bar plus nb bar is equals to 0 bar. We want to show that. Suppose a and b the collinear, इतना ही आपको दिया हुआ है, तो आपको there exists a scalar, then we want to show that, this is the show that m and n is a scalar and m a plus n b is equals to 0। अभी टू वेक्टर्स कोलिनियर्स है तो आप क्या करेंगे, there exist scalars, we want to show, क्या करेंगे, ये दो वेक्टर्स आपको कोलिनियर है, दो वेक्टर्स कोलिनियर है, आई कैन टेक एज द a इज कोलिनियर ऑफ b, मींस व्हाट इज, समझो मैंने यहाँ पर लिख दिया a वेक्टर से a और a वेक्टर्स b है, ये दोनों ऐसी एक ही लाइन पे है, तो क्या हो जाएगा, a b a c पॉइंट ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू, जैसे ये जो है समझो ये b है, ऐसा पूरा b है और यहाँ तक a है, ए वेक्टर्स हो गया, ये b वेक्टर, तो कोलिनियर अपन कैसे बोलते हैं, जैसे ये हो गया तो आप क्या बोलेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू, यानी b वेक्टर्स इज इक्वल्स टू a वेक्टर, कब होगा, a वेक्टर यहाँ पर आप कुछ तो भी स्केलर ले लेंगे, मींस one of the vector is a scalar multiple of other, then two vectors are collinear। ओके, फिर इस उसी प्रकार से यहाँ पर दो वेक्टर जो है वो दो वेक्टर्स क्या है,
कोलिनियर है, दो वेक्टर्स कोलिनियर है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वन ऑफ द वेक्टर्स, देयरफॉर हियर वेक्टर ए ले सकते और बी ले सकते, वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू टी बी बार, ऐसा बोल सकते हैं। अभी टी क्या है, क्या है, टी इज स्केलर, टी इज स्केलर मीन्स ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, देन एग्जिस्ट टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, ये भी आपको कंसीडर करना चाहिए कि जीरो नहीं है, जीरो रहने के बाद तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, है ना। अभी देन उसके बाद में जैसे अभी मैं इसको लिखता हूँ, जैसे ए बार माइनस टी बी बार इज इक्वल्स टू जीरो बार, ऐसा लिख सकते हैं आप। जैसे आपको शो करना है ए बार माइनस बी बार, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ कि दैट इज यम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल्स टू जीरो बार। कंपेयर करो आप, है ना, कंपेयर कर सकते हैं। वेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर, m यानी कौन सा आपने यूज किया है, m इज इक्वल्स टू 1 एंड n इज इक्वल्स टू माइनस t, बराबर है ना, m इज इक्वल्स टू एंड n इज इक्वल्स टू माइनस t, तो ये आपका शो हो गया। ये जो देयर एग्जिस्ट स्केलर m n एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो सच दैट देयर m a n b इज इक्वल्स टू जीरो आपको शो करना था। मैंने ये दो वेक्टर्स ले लिए यहाँ पर, इसको ऐसे किया इस प्रकार से, ये शो हो गया होगा, ओनली ईफ पार्ट आपका शो होगा। अभी हाँ, ओनली ईफ पार्ट, अभी आपको क्या शो करना है, ईफ पार्ट शो करना है ना। चलो यहाँ पर ही लिखता हूँ, क्या देखेगा आपको, उल्टा लिखते हुए जाना है, कुछ भी नहीं है। क्या है अभी समझो, यहाँ पर कॉन्वर्सली आप बोलेंगे क्या क्या है, यहाँ पर दिया हुआ आपको, दिया क्या है, कॉन्वर्स यानी कौन सा पार्ट है, ये ईफ पार्ट है ना, ईफ पार्ट, कुछ नहीं जल्दी हो जाता है। ईफ पार्ट क्या, ईफ पार्ट में क्या दिया हुआ है, यमे, है ना, ये है सपोज एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल्स टू जीरो बार, ये दिया हुआ है। तो वी वांट टू शो दैट टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है, आपको शो करना है। तो आप इसको ऐसे करेंगे, यम ए बार, है ना, इसको मैं डायरेक्टली लेता हूँ, यम ए बार इज इक्वल्स टू माइनस एन बी बार, बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। एम ए बार उसको मैं उस साइड में किया, यहाँ पर फिर यहाँ पर यम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो आपको यहाँ पर ऐसे करेंगे, ए बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन बाई यम इंटू बी बार हो जाएगा कि नहीं। फिर ये जो है यम बार माइनस एन बार, ये जो है स्केलर हो गया, देयरफॉर ए बार इज इक्वल्स टू टी बी बार, ऐसा लिख सकते हैं, टी बी बार, एंड टी इज इक्वल्स टू हियर वेयर t is equals to minus n by m is a scalar, means therefore क्या लिखेंगे यहाँ पर, a bar is a scalar multiple of b, a bar is scalar multiple of b bar, a bar is a scalar multiple of b bar, therefore vector a, last line, therefore vector a and vector b bar are collinear, a bar and b bar are collinear, है ना। इस प्रकार से आप ओनली ईफ पार्ट और ईफ पार्ट शो कर सकते हैं। इसके कॉरोलरीज है, आप कॉरोलरीज डायरेक्टली लिख सकते हैं। कॉरोलरीज की प्रूफ नहीं है आपको, कि दो प्रूफ है, इसमें बहुत सारे थ्योरम, 8-9 थ्योरम्स है, वो आप एक एक करके देखेंगे, डेली दो या तीन ऐसे थ्योरम्स देखेंगे और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे दो वेक्टर से उसके कोलिनियर कोप्लानर टेस्ट में मैंने कहा था, एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू एस वन बार प्लस एस टू बार, ऐसा लिखा ना, तो वहाँ पर कंपेयर करके उसकी वैल्यू उसकी कंपेयर अपन कर सकते हैं, वो भी आप कोलिनियर से ही तैयार अपन यूज़ कर सकते हैं, उसमें यूज़ किया हो। इस प्रकार से ये दो थ्योरम है। नेक्स्ट इसमें अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय।